started getting the feedback, and when people said that it is working like magic, and that's when we thought, let's start giving it some more time. Tell us, is this strategy built for advanced traders only, or can a beginner also understand this? No, absolutely, any beginner can also use it, because this is based out of only one indicator. We use indicator and the volume. So these Basically, how much capital do we need for executing this K5 strategy? अगर कोई stock 100 rupees का है और you want to apply it just for one stock, yes, absolutely you can do that. So there is no minimum capital requirement. क्या ये अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकता हूँ, या मुझे फुल टाइम सिस्टम पे बैठना पड़ेगा? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. Hey guys, welcome to today's video, and today's video is going to be extra special because we are breaking down our proprietary intraday strategy. We have with us Mr. Kunal Ambasta, the CIO of Liquid and the man behind the famous K5 strategy. How are you, Kunal? Perfect. Thank you so much, Mohit. I'm good. That's great, Kunal. Before we move ahead, just wanted to know, before we get into the charts and everything, just wanted to know what made you come up with this K5 strategy, which is famously spoken about. In fact, after our Conclave 4.0, everybody is talking about it. So actually, this strategy is not something, I strategized and said that, this is how I will trade. It is over a period of time, whatever I have learned, I started implementing that. And that's why earlier I was not even talking about it, because myself and my internal team was using it. But after that, we did it in one of our, academy session. We actually talked about it. And after that, when we started getting the feedback, and when people said that it is working like magic, and that's when we thought, let's start giving it some more time. So now it's been like 1.5 years, and we have enough and more proof that people are actually using it. They are able to get to it in a very proper manner. They understand the strategy, and that's why we have started talking about it a lot more than what we were doing it earlier. So this just happened. Got it. So this is not just our study, but we have got an external confirmation as well from the people outside. Yeah, we did. That's great to hear. So tell us, is this strategy built for advanced traders only, or can a beginner also understand this? No, absolutely. Any beginner can also use it, because this is based out of only one indicator. We use indicator and the volume. So these are the only two things we use part of it. So absolutely, any beginner can definitely use it. Got it. So basically, it's not restricted to advanced traders, but a beginner, because anyone. Yeah, got it. That's the beauty of it. That's great. And one more very common question, that how much for any strategy to execute, there's a certain minimum capital which is required. So one of the most asked questions for any strategy, basically, how much capital do we need for executing this K5 strategy? For this one, since it can be applied to equity as well, technically, it can be started as low as 100 rupees as well. Okay. So whatever is the minimum stock price is what you can start implementing it for. But I will say that, implement that only on those stocks wherein you have some sort of liquidity. So this is one guardrail that we always put. Right. But beyond that, there is no specific capital requirement. Agar koi stock 100 rupees ka hai or you want to apply it just for one stock, yes, absolutely you can do that. So there is no minimum capital requirement. Absolutely. So basically वही कि liquidity का एक बार रख देते हैं ताकि कोई फंसे नहीं उस stock में. वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, because there is a pattern. And pattern can only be formed when more number of participants are actually participating in the market. Absolutely. ऐसा नहीं है कि one particular individual made a bigger trade, and उसके कारण से अगर price up or down जाता है, so then it is not a pattern forming, right? Not everybody is doing it. So the strategy is based on, if a lot of people believe that this is what is happening, we will just ride on that. So that is what is the crux of it. Absolutely. In fact, many of the strategies also work on the liquid stocks as well, because there's a pattern, as you said, that gets formed. Yeah. I mean, this is how all the pattern works, right? Technical indicator only works when everybody believes that after 20 EMA, the stock will take support and then move, right? So if everybody starts believing it, then you buy it, I buy it, 1,000 different people buy it, and that's how the price surge. That's how it works. And last question before we delve into the chart. Is this a directional or a non-directional strategy? It works on a directional stock or market definitely really well, I would say. But when the market is in consolidation or the market doesn't move much, what it will do is it will take you out of the position very quickly. So जो stop loss होता है ना, वो बहुत ज़्यादा deep नहीं होता है. It will take you out with whatever
points that you will Right. we'll talk about the strategy and then you will get to understand that. But मेरे हिसाब से जहां पर भी sideways market हो जाता है, it doesn't let you be Right. there in the position for so long, so that Right. अगर आप option भी इसके through अगर buy कर रहे हो तो आपका थीटा डीके उतना नहीं थीटा होता डीके है. नहीं So that होता. is one great part of it. गॉड इट, जल्दी मिल जाता है हम लोगों को Exit पता चल जाता है. Right. हाँ, exit मिल जाता है. Perfect. All right, Kunal, I think we have answered the major basic questions. I think it's time for us to, get into the charts Yeah, and yeah, break it down completely for our users out there. Let's Absolutely. go, guys. Let's go, Kunal. Let's get into Yes. that. ठीक है. All right, Kunal, let's deep dive into the charts now. Cool. ठीक है. So start करते हैं. Yes. So what we will do is we will look at those stocks जिसमें movement आई, क्योंकि अभी हमने Right. बात किया था कि जिस स्टॉक में movement आता है, ट्रेंडिंग स्टॉक पे बहुत अच्छा चलता है, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा चलता है, साइडवेज मार्केट में विल टेक यू आउट. तो वो सारे एग्जांपल लेंगे, बट सिंप्लिसिटी से के लिए हम लोग सिर्फ वहां से स्टार्ट करें जहां पे स्टॉक ने आज थोड़ा ट्रेंडिंग मूव दिया था, सो दैट क्लैरिटी आ जाए. समझ गए. उसके बाद हम लोग उसके वेरिएशन पे चलते हैं वन आफ्टर अनदर. चलेंगे, मतलब डायरेक्शनल स्टॉक्स पे चलेंगे. डायरेक्शनल स्टॉक पे Yes. चलेंगे. तो आज हम लोग हिंद कॉपर के बारे में पहले देखते हैं. Okay. हिंद कॉपर का क्या चल रहा है. तो आज 6.32% का मूवमेंट आया, काफी बड़ा मूवमेंट है. स्टॉक पिछले 8-10 दिन से अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, राइट. 250 Right. से ऑलरेडी 328 आ गया, तो अच्छे खासे मोमेंटम में था. आज भी 6% भागा. तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर हम मुझे K5 स्ट्रेटजी अप्लाई करना होता तो कैसे करते हैं. करते हैं? तो K5 अप्लाई करने का सबसे पहला जो प्रीमाइस है कि ये जो इंडिकेटर, इसमें जो K5 एक्चुअली स्टार्ट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को प्लॉट करना पड़ेगा. Right. तो ये जो स्ट्रेटजी है ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलती है. सिंस इट इज ए इंट्राडे स्ट्रेटजी, आप 5 मिनट पे चार्ट प्लॉट करते हो और उसके हिसाब से आप डिफाइन करते हो. राइट. तो 5 मिनट्स का चार्ट प्लॉट करना है अपने को. हाँ. राइट. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं. राइट. अब थोड़ा सा मैं चार्ट को रीसेट कर लेता हूं. तो Okay. ये हमारा फर्स्ट एंट्री पॉइंट हो गया 5 मिनट टाइम फ्रेम में. एज्यूम करो कि Yes. आज मार्केट जस्ट ओपन हुआ है. राइट. अभी हमें ये पता नहीं है कि बाकी का कैंडल कैसा बनेगा. राइट. नाउ हाउ आई अराइव्ड एट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज समथिंग पार्ट ऑफ द स्क्रीनर. तो वो स्क्रीनर के बारे में हम लोग सेपरेटली बात करेंगे. आज का जो फोकस होगा सिर्फ ये है कि एज्यूम करो कि हमने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया. अब इसमें अगर मुझे पोजीशन लेना होता तो कैसे करेंगे, वहां से स्टार्ट. तो आप एक तो अपने स्टॉक्स में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्क्रीनर चाहिए कि किसमें ट्रेंडिंग है तो आप कमेंट में बता दीजिए. तो हम नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे कि स्क्रीनर के ऊपर बनाएंगे जो बेसिकली K5 स्ट्रेटेजी के लिए यूज होता है. तो कमेंट में बताओ कि आपको स्टॉक का स्क्रीनर चाहिए. अगर स्क्रीनर चाहिए तो स्क्रीनर टाइप कर दो एंड देन वी विल प्रोड्यूस द नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन द स्क्रीनर, कि मतलब स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं फॉर गेटिंग द स्टॉक्स फॉर K5 स्ट्रेटेजी. ठीक है. ठीक है. यस. सो स्टार्ट करते हैं. तो हम लोगों को क्या करना है, अपने पूरे जो चार्ट है उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लॉट करना है. राइट. अब एज्यूम जैसे मार्केट ओपन हुआ तो पहला कैंडल अभी इन द मेकिंग है, फर्स्ट कैंडल Right. बन रहा है. अब ये कैंडल कब क्लोज होगा, 9:20 में. 9:20 पे. तो जैसे ही 9:20 हो जाता है पहला कैंडल फॉर्म हो जाता है. अभी 9:20 में ये सारे कैंडल नहीं बने रहेंगे. फर्स्ट Right. कैंडल बनेगा तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कैंडल के हाई और फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा. एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर. परफेक्ट. अब हमें ये देखना है कि जो स्टॉक अगर इसके ऊपर जा रहा है, इस लाइन के अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कि वी विल गो लॉन्ग. गॉट इट. आप बाय करोगे. आप बाय करोगे. और अगर इस लाइन के नीचे जा रहा है तो विल गो शॉर्ट, मतलब आप सेल सेल करोगे. करोगे. ठीक है. तो वहां से स्टार्ट कर. यस. अब देखो इस स्टॉक में क्या हो रहा है, पहला 5 मिनट के कैंडल के हाई और लो. और प्लीज रिमेंबर ये कैंडल की बॉडी पर नहीं है, कैंडल के विक के ऊपर. मतलब Yes. जो हाई और लो, एग्जैक्ट हाई और लो पॉइंट जो होते हैं उसमें हम लोगों को इसको प्लॉट करना है. अब हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर लिया. उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब 9:20 में हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का एक इंडिकेटर में जाएंगे. ठीक है. वॉल्यूम प्लॉट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा इंडिकेटर है. ये आपको बताता है कि लिक्विडिटी है कि नहीं है, आज लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंड ऑल दैट. सो वॉल्यूम को यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं. राइट. अब देखो जैसे ही हम लोग वॉल्यूम प्लॉट करते हैं ना, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एवरेज वॉल्यूम से अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए. राइट. बेसिकली अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए हमारे स्टॉक हाँ, में. अभी हाँ. उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? अच्छा वॉल्यूम कैसे है? हाँ. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मोहित. और Okay. मुझे लगता है कि कम से कम 5,000 लोगों ने मेरे से पूछा होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि सर ये वॉल्यूम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो और एवरीवन लुक्स एट अ नंबर कि सर 100 के ज्यादा हाँ. होता है, 1 लाख अच्छा वॉल्यूम है क्या, या 5 लाख अच्छा वॉल्यूम है क्या. अब वो तो डिपेंड करता है कि आपने मारुति का अगर एक स्टॉक देखा है, वो हाँ. 15,000 रुपीज का स्टॉक है, तो उसमें शायद
20 लाख वॉल्यूम विल बी टू हाई, yes. बट जो स्टॉक अभी 20 रुपीज का है, 50 रुपीज का, उसके लिए 20 लाख वॉल्यूम इज नथिंग. right. तो स्टॉक के टर्नओवर पे डिपेंड करता है, मोर देन दैट उसकी लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है. okay. तो हम लोग को एक नंबर असाइन नहीं करते हैं वॉल्यूम के लिए. तो वॉल्यूम अगर अच्छा है या खराब है ये डिसाइड करने के लिए व्हाट वी विल डू इज हम लोग उस स्टॉक को उसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करें कि वो स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम किस तरह का होता है, वो कैसे ट्रेड होता है, उसी के स्टॉक के बिहेवियर के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आज इसका बिहेवियर कुछ अनयूजुअल है क्या, वो डिसाइड करेंगे. परफेक्ट. तो उसके लिए हमने क्या किया, वॉल्यूम पे आए तो वॉल्यूम में एक सेटिंग करते हैं जो हमें ये बता देगा कि आज का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है. गॉट इट. ठीक है, तो यहाँ पर आप सेटिंग टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम MA इज वन ऑफ द इंडिकेटर का एक ऑप्शन आ गया. यहाँ पे मैं इसे चेक कर देता हूँ. अब देखो जैसे ही मैं इसे चेक कर रहा हूँ ना, एक ब्लू लाइन यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, ये ब्लू लाइन. अब मैं इसको क्लैरिटी से के लिए मैं इसको व्हाइट भी कर देता. ठीक है, व्हाइट कलर का क्लियर पता भी चलेगा ब्लैक बैकग्राउंड पे. हाँ. अगर हमारा कैंडल वॉल्यूम का जो बार है इस लाइन के ऊपर है, राइट, ये जो कैंडल है ये इस लाइन के ऊपर है, मतलब है कि वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है. Okay. और इसके नीचे है मतलब एवरेज से कम है. तो ये जो वॉल्यूम MA है ना, यहाँ पर ये लास्ट 20, आप इसका इनपुट अगर यहाँ पर जाकर के देखेंगे, सॉरी वो नहीं आ रहा है, इनपुट्स पे आ रहा है, 20 आना चाहिए. हाँ, MA लेंथ, यहाँ पर MA लेंथ 20 आ रहा है. yes. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि लास्ट 20 जो भी इसके जो भी ट्रेडिंग 5 मिनट के जो कैंडल है उसका एवरेज वॉल्यूम क्या था. अब देखो कल कुछ वॉल्यूम ही नहीं था यहाँ पर, टेक्निकली कोई भी वॉल्यूम था, बहुत ही मिनिमम वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा था. राइट, आज वॉल्यूम आना शुरू हुआ, इसलिए वो आज हमारे स्क्रीनर पर भी आया. राइट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, वॉल्यूम देख लिया. अब हमारा लॉजिक क्या कहता है कि जब भी स्टॉक इसके ऊपर जाता है पॉजिटिव, इसके नीचे जाता है नेगेटिव. बढ़िया, ऊपर जाएगा तो लॉन्ग लो, नीचे जाएगा तो शॉर्ट लो. एंड वॉल्यूम का बेसिकली वॉल्यूम उस लाइन के एवरेज के ऊपर है तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस है. हाँ. तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब थोड़ा सा रूल के हिसाब से समझते हैं कि अब हमें 2 कैंडल का कंफर्मेशन होना चाहिए. एक कैंडल जो फर्स्ट कैंडल होता है उसको हम लोग अलर्ट कैंडल बोलते हैं, जो सेकंड कैंडल को हम लोग कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं. परफेक्ट. तो फर्स्ट कैंडल आप इस केस में देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ. जो फर्स्ट कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है. तो पहला कैंडल इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, मतलब ब्रेकआउट हुआ. टेक्निकली ये क्या हो रहा है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर में मैं मूव हुआ, डे हाई हो गया, ब्रेकआउट हो, ये तो जनरल कंसेप्ट है, सबको पता है. तो हम लोग इसके ऊपर वेट करेंगे कि कैंडल क्लोज हो. यस. और फिर एक और कैंडल जो कंफर्मेशन कैंडल है वो भी हम लोग ट्राई करेंगे, और उसका मैं अब 1-2 एग्जांपल दिखाऊंगा कि कहां पे ट्रैप हो सकता है. गॉट इट. तो यहाँ पर हम लोग एक और कैंडल का वेट करेंगे, थोड़ा लेट एंट्री लेंगे. इट इज स्टिल ओके टू टेक लेट एंट्री देन टेकिंग अ रॉन्ग एंट्री. गॉट इट. ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोगों ने ये अलर्ट कैंडल और जब कंफर्मेशन कैंडल देखा तो एक चीज ये हमें होना चाहिए कि अलर्ट कैंडल या कंफर्मेशन कैंडल दोनों में से किसी एक कैंडल का वॉल्यूम एटलीस्ट मिनिमम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए. इस केस में तो दोनों ही है, इससे ज्यादा. yes. तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, दोनों में से एक भी हुआ तो चलेगा, भी हुआ तो चलेगा. बट अगर दोनों का एवरेज वॉल्यूम उससे कम है ना मोहित, तो वी शुड नॉट एंटर. गॉट इट. मतलब वो बता रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है ना, लोगों में इंटरेस्ट नहीं है. यस. राइट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कैंडल जैसे ही इसके ऊपर में बंद हो जाता है, इमीडिएट नेक्स्ट विल बी आवर एंट्री. तो नेक्स्ट क्लोज में कि ओपन में लेना है हमको? क्लोज जैसे ही ओपन होता है, जैसे कि ये कैंडल क्लोज हो गया, हाँ. अगला कैंडल का जहां पर ओपन होता है वहां पर हमारी एंट्री बन जाएगी. तो मतलब अलर्ट कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद का नेक्स्ट कैंडल में ओपन में हमको एंट्री लेनी है. ओपन में जैसे ये 9:55 का कैंडल है, मतलब ये 10 o'clock क्लोज हुआ. यस. एग्जैक्टली 10 o'clock 1 सेकंड के बाद जाके मैं इसमें एंट्री बना लेंगे. तो मैंने एंट्री बना लिया यहाँ पर. यस. ठीक है, आई वेंट देयर एंड देन आई मेड अ एंट्री. कहां पर हो गया, 321.60 के आसपास में. अब ये एंट्री मुझे इस केस में 10 o'clock मिला, किसी केस में मुझे 9:30 पर भी मिल जाता है. राइट. सो द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर और दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज कि आपको जो पहली एंट्री मिलती है वो 9:30 के बाद ही मिलती है. और उसका एक और लॉजिक भी है. राइट. कि 9:30 से पहले जो फर्स्ट 15 मिनट होता है ना, उस समय लोग प्रीवियस डे के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं. बहुत सारे एल्गोज चलते हैं. तो इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग पहले मार्केट को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं. बोल रहे हैं ठीक है, आई विल लेट यू डिसाइड कि आपका क्या डायरेक्शन है, बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक एंट्री. मैं वेट करूंगा बट मैं थोड़ा कंफर्मेशन पे एंट्री लूंगा. राइट. तो मुझे ऐसा कूद नहीं जाना है कि अच्छा आज अच्छा वॉल्यूम हुआ है, थोड़ा सा गैप अप हुआ है, इवन तो रेड कैंडल बन रहा है मैं ले लूंगा. हो सकता है ये ट्रैप हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये नीचे भी आ सकता था. राइट. तो हम लोग कंफर्मेशन का वेट किए, हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई. अब एंटर कर गए, एंट्री के सारे जो भी लॉजिक है वो क्लियर हो गया. इसके ऊपर हमने
फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ इस लाइन के ऊपर, सेकंड कैंडल क्लोज हुआ, वॉल्यूम कैंडल बना, Got it. थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री बन गई। Yes. अब हमें देखना है कि हमें इसमें कहाँ तक रहना है, कहाँ तक हम लोग इसमें अपना लेके जा सकते हैं, टारगेट क्या होगा, राइट? Yes. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। Right. तो टारगेट के लिए आई ऑलवेज से देयर आर टू वेज। Okay. वन इज द नॉन ग्रीडी वे, मतलब मतलब 0.5% भी अगर मिल जा रहा है मुझे इंट्राडे तो मेरे लिए बहुत है। Partial तो प्रॉफिट बुक कर 0.5% तो अमेजिंग रिटर्न है ना मोहित। 12% निफ्टी का स्टैंडर्ड रिटर्न Right. है साल भर का। बैंक में आप डालोगे तो 6% मिलता है आपको पर डे, अगर 0.5 मिल रहा है तो फिर नथिंग लाइक इट। Absolutely. बट क्या है ना कि वो ये दिल मांगे मोर, right? हमेशा लगता है कि वी शुड गेट मोर, एंड वो हार्ड बन भी रह जाता है। Right. तो मुझे क्या लगता है, एक जनरल रूल बना लेते हैं कि जब भी मुझे 1-2% मिलेगा ना तो फिर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँ, कर लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट बुक करने से ना आज तक किसी का लॉस नहीं हुआ है। एग्जैक्टली इसको आप गार्ड बांध लो, प्रॉफिट बुक करने से लॉस नहीं होता है दोस्तों, एटलीस्ट आप उतना लेके जाते हो। तो Right. प्रॉफिट बुक, पार्शियल प्रॉफिट में बुक कर रहा हूं ना, तो मुझे दो बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो मैंने कुछ प्रॉफिट को लॉक इन कर लिया, यस। दूसरा मुझे वो हार्ड बन भी नहीं होगा कि यार मैं 1% पे निकल गया ना, बाकी स्टॉक 8% की रैली कर रहा है। राइट राइट। तो मैं जल्दी निकल गया और स्टॉक भाग गया। वो इंस्टाग्राम पे वो ऐड आता है कि मैं निकल गया तो फिर वो स्टॉक ऊपर भाग गया एंड ऑल दैट। इसमें तो आप निकलोगे भी और आपके पास क्वांटिटी भी है जो आप राइड अपने करोगे। आपको सेफ गार्ड कर लिया, Yes. आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नेक्स्ट क्वांटिटी में मेरे को Right. स्टॉप लॉस लगेगा, फिर भी नेट न्यूट्रल में रहूंगा, करेक्ट। राइट? क्योंकि मैंने 1-2% कमा लिया है, इसमें स्टॉप लॉस आपको 2% से ज्यादा नॉर्मली कभी भी नहीं बन सकता। राइट। बहुत कम केस है, बहुत ही रेयर केस, तो उसके Right. बारे में बात भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एंटर करके अब हम लोग बात करते हैं। जो पहला लॉजिक तो था कि आप Yes. कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से जहां आपको लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कर लो। Yes. ठीक है, और उसके मल्टीपल रूल है, आप मल्टीपल इंडिकेटर ऑलरेडी यूज करते हो, यू अप्लाई दोज एंड देन फिगर आउट कि आपको कहाँ पर इसमें Partial profit फर्स्ट book कर क्वांटिटी सकते हो। बुक करना है। Yes. इस स्ट्रैटेजी को अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हो, कुछ और नहीं सोचना चाहते, कोई दिमाग नहीं लगाना चाहते, 1% पे करो, 2% पे Right. करो, देन यू विल हैव टू यूज वन मोर इंडिकेटर, एंड दैट इज द ओनली अदर इंडिकेटर वी आर गोइंग। Okay. इसलिए मैंने ये बोला था कि ये बेसिक, बहुत ही बेसिक, एकदम एलिमेंट्री लेवल स्ट्रेटजी है, बिगिनर्स भी इसको आराम भी से समझ यूज सकते कर हैं। सकते हैं। एब्सोल्युटली। द गुड पार्ट इज सिर्फ 2 इंडिकेटर्स हैं। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप जाते हो तो 2 इंडिकेटर Free में हो फ्री में जाएगा भी आपका। अवेलेबल होते हैं, प्रीमियम Yes. वर्जन लेने की जरूरत नहीं होती है, तो वो सारे भी बेनिफिट, राइट। राइट? तो विल गो टू द इंडिकेटर यस। and then we will say that we are using a indicator called VWAP. बहुत strong indicator है मोहित, I love Right. this indicator. Intraday पे it works like charm. ओके। तो ये इंडिकेटर आप जैसे ही प्लॉट करते हो ना, आप देखो यहाँ पर आपके 3 लाइन आ जाते हैं। हाँ। अब जैसे ही 3 लाइन आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है राइट। कि अब मैं इस कैंडल को मानूं, इस कैंडल को मानूं, इस Right. कैंडल को मानूं, और फिर आपको ना वो एक अपने आप को कन्विंस करने वाली बात हो जाती है कि अच्छा ठीक है, ये वाला लाइन नहीं है ना, ये वाला लाइन को मैं ले लेता हूँ। राइट। लोग करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर करते हैं। Right. तो थोड़ा जितना आप अपने चार्ट को क्लीन रखते हो, उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका जो ट्रेड है वो भी पूरा क्लीन हो, राइट। राइट? सो विल गेट ऑन टू दैट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर एक सेटिंग का चेंज है। Right. अब मैं दोबारा आपको दूसरी सेटिंग बता, बेसिकली चार्ट सिंपल कर रहे हैं, चार्ट सिंपल तो Chart ट्रेड simple. सिंपल होगा आपका। एग्जैक्टली। तो सेटिंग में जाते हैं। जैसे ही मैं सेटिंग में गया, आई गो टू द स्टाइल टैब, राइट। और ये अपर बैंड और लोअर बैंड हटा दिया मैंने। देखो अपर बैंड और समझ लोअर गया। बैंड जो मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइट है ये हट रही है, हट रही है। तो अपर बैंड लोअर बैंड हटा दिया। अपर बैंड और लोअर बैंड को अनटिक करना है दोस्तों। अनटिक वो किया। देखो। हाँ। इसको मैंने व्हाइट कलर कर लिया, क्योंकि मैं व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ। अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड यूज करो तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं, ब्लू लाइन विल वर्क फाइन। तो ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए, बट पहला जो 2 था वो क्लैरिटी के लिए थी, इन टर्म्स ऑफ योर चार्ट की क्लैरिटी, एंड दिस इज लाइक योर विजुअल क्लैरिटी। ठीक है, Got it. अब हम लोग यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। अब हमारा एग्जिट कहाँ होगा? हमारा एग्जिट होगा जब भी 2 कैंडल इस वीवैप लाइन के नीचे बंद हो जाए। इस केस में हुआ ही नहीं। ओके। इस केस में हुआ ही नहीं। एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। इसमें जब हम ऊपर भी ले रहे हैं, यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, हाँ। एंट्री में भी कैंडल क्लोजर देखना है, राइट? विक नहीं देखना है, हमको क्लोजर देखना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिए, मुझे समझ नहीं। जैसे कि ये अगर हम लोग एंट्री लेते हैं फर्स्ट तो, कैंडल, सेकंड कैंडल, यहाँ के ओपन जैसे ही ओपन होता है वैसे ही ले रहा हूँ। बट ये जो अलर्ट और कंफर्मेशन कैंडल है वो क्लोज होनी चाहिए, हाँ right? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो तो 100%, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो आपको ट्रैप करेगा। मैं आपको हाँ। 1-2 एग्जांपल आज भी दिखाऊंगा, तो वो ट्रैप करेगा। राइट, गॉट इट। तो हमें क्या करना है, वेट करना है कैंडल क्लोजर का, वो Got it. इंपॉर्टेंट है। Perfect. कैंडल क्लोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। Yes. तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कैंडल क्लोजर के बाद ही पोजीशन लें। वो आप अच्छा कैंडल करते क्लोज का वेट करो आप। 2 कैंडल क्लोज हो गए, उसके बाद थर्ड कैंडल के ओपन में हमको लेना है। सो इट्स ओके फॉर मी टू टेक अ Yes. ट्रेड अ लिटिल लेटर। Yes. हो सकता है मैं 5 मिनट लेट ट्रेड करूं लूं, या फिर मैं 2 रुपए ऊपर ट्रेड बाय करूं, Right. बट आई विल बी वेरी श्योर कि उस ट्रेड को ना, उस मेरा पूरा सेटअप बना। इसलिए मैं
हड़बड़ाता नहीं हूँ, वेट करूंगा कि वहां पर वो पोजीशन बनेगा एंड देन बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक। एब्सोल्युटली। सो दिस इज वेयर 321 पे हमारी एंट्री हुई। राइट इसमें दिन भर में एज पर स्ट्रेटजी एग्जिट नहीं बना। राइट तो हम लोग कहाँ पर एग्जिट करेंगे? 3-3:30 बजे। मुझे लगता है 3:15 के बाद आपको 3:15 पे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इस केस में हमारी एंट्री कहाँ पर बन रही है मोहित? 321 पर। हाँ हमारा एग्जिट कहाँ पर बन रहा है? हमारा एग्जिट बन रहा है अराउंड 328 विच इज 2.25%। 2.25%। एक बार भी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ कि बीच में एक बार नीचे आया ऊपर आया, एकदम क्लीन ट्रेड था। क्योंकि इसका एग्जिट बनना था तो वीवैप के नीचे आनी थी, 2 कैंडल वीवैप की नीचे आनी थी और वो आई। यस परफेक्ट। बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है, राइट तो इसको इंट्राडे की तरह अप्लाई करना है। ज्यादा ग्रेडी नहीं होना है। नहीं आया तो मैं नेक्स्ट डे भी कैरी ठीक फॉरवर्ड। है, अभी मैं नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड वो नहीं करना है, क्योंकि हर स्ट्रेटजी का अपना एक रूल होता है और उस Right. रूल को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, दोनों में अलग अलग फर्क अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल को ज्यादा फोकस Yes. करेंगे, शॉर्ट टर्म करते हैं तो टेक्निकल करते हैं, तो Right. अलग अलग स्ट्रेटजी है। सेम वे अगर हम लोग मल्टी डेज के लिए स्विंग करें तो स्विंग के लिए हमारे पास अलग स्ट्रेटजी है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट इस केस के हिसाब से 315 हार्ड स्टॉप रूल है, hard stop। 315 को और वो आप करना है exit कर दो। डिसिप्लिन से। यस ठीक है, इधर वो आपको स्ट्रेटजी पहले ही एग्जिट करा देगा या 315 पे आपको खुद से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, सो दैट इज हाउ द एग्जिट विल बी। तो इन दिस केस इट इज वेरी क्लीन यस ट्रेड। लेट्स लुक एट सम प्लेस जहां पे थोड़े वेरिएशन आए। सो मोहित नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में नेटवेब। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, वीवेब को हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग अभी पहले एंट्री की बात करेंगे, तो अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ। लेट्स लुक एट नेटवेब। अभी 9:15 की कैंडल पे हम लोग बात करते हैं। लेट्स लुक एट 9:15 की क्या कैंडल है। दिस इज 9:15 की कैंडल। अब हम लोग इसके हाई और इसके लो पर प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट कर रहे हैं। Yes. क्या कर रहे हैं, तो इसके हाई पर और लो पर। राइट अब अगर कैंडल इसके ऊपर निकल जाता है तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट नीचे आ जाता है तो नेगेटिव डायरेक्शन। ये ध्यान में रखना। यस अब इस केस में देखो क्या हुआ, जैसा कि मैं पिछले एग्जांपल में बता रहा था कि हमारा जो पहला एंट्री बना था 10 o'clock, राइट बट पहली एंट्री बन कब सकती थी? अर्लीस्ट 9:30 के बाद, राइट मतलब 9:30.01 सेकेंड। यस इस केस में वही हुआ। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, हाँ. सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, थर्ड कैंडल इसके ऊपर क्लोज, 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया। अब हमें और क्या चेक करना था? वॉल्यूम चेक तो वॉल्यूम यहाँ पर हमने चेक किया, फर्स्ट कैंडल चेक किया, सेकंड कैंडल चेक किया, कंफर्मेशन हो गया। राइट थर्ड कैंडल का वो जैसे ही ओपन हो रहा है हमारा एंट्री बन रहा है। कहाँ पर Perfect. हमारी एंट्री हुई? 3478 पर। 3478 हाँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कहाँ तक उसको वेट कर सकता और उसके लिए मॉर्निंग इंडिकेटर यूज करेंगे। तो अगेन सेम लॉजिक, ग्रीडी नॉन ग्रीडी स्ट्रेटजी, एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉलोइंग वर्सेस अप्लाइंग एनी अदर डेविएशन, अप टू यू, जो भी आप करना चाहते हो। बट इस स्ट्रेटजी के हिसाब से एग्जिट कहां पर बनेगा? जब 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगा। राइट 2 कैंडल वीवैप के नीचे क्लोज हो जाएगा। अब देखो वीवैप के नीचे एक भी कैंडल हुआ ही नहीं है, आया नहीं है इसमें। तो इसमें भी एग्जिट कब बनेगा? Right. 315 पे। हमारी एंट्री कहां पर है? 3471 पे हुआ था क्या? 3478 पर हुआ था ओके एंड हमारा एग्जिट यहाँ पर हो रहा है करीब 4% का बिग मूव है। मूव, राइट? यस तो 5-5.5% स्टॉक मूव या हमारा स्ट्रेटजी ने 4% कैप्चर। करेक्ट नथिंग राइट एंड 315 को काट के पोजीशन एंड 4% लेके जा सकते हैं अपन। परफेक्ट करेक्ट। सो मोहित नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। ओके लास्ट पे हम लोग जा रहे हैं, राइट? यहाँ से तो अब इस स्टॉक में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा जिगजैग पैटर्न है, तो शायद यहाँ पे हमें एग्जिट मिला होगा। एक बार चेक करते हैं। यस फर्स्ट कैंडल 9:15 का, ओके ये हमारा 9:15 का कैंडल था। राइट अब इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए। वॉल्यूम जो है मिनिमम एक कैंडल का जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। बेयरली इसने एक कॉन्फिडेंस दिया हमें राइट कि ठीक है, एक कैंडल का हो गया इसके ऊपर, सेकंड कैंडल का ऑलमोस्ट देयर है। यस फिर भी सेटअप के हिसाब से बन गया क्योंकि एक कैंडल में आ गया। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, यस बट सेटअप के हिसाब से बन गया। ठीक है, राइट तो यहाँ पर हमारी फिर से एंट्री बन जाएगी। Right. अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एग्जिट कहाँ होगा। यस 2 कैंडल वीवेब के नीचे क्लोज हो Right. जाना चाहिए। लेट्स गो, सॉरी, लेट्स यस सी। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री ले रहे हैं यस इस कैंडल पे, और हमारा एग्जिट कहाँ पर बन रहा है? फर्स्ट टाइम इसने ट्राई किया हमें थोड़ा डराने का। हाँ एक कैंडल ऑलमोस्ट वीवेब के नीचे जस्ट आया, क्लोज हुआ। सेकंड कैंडल ने बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ऊपर क्लोज हो गया, नीचे नहीं आया। ओके एग्जैक्टली, गॉट इट। तो यहाँ टेस्ट से करके चला गया। टेस्ट करके चला गया। नाउ लेट्स सी कि हमारा एक्चुअल में एग्जिट कहाँ पर आया।
सो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, यस हमारा एग्जिट हो चुका है एंड दिस इज वेयर वी विल एग्जिट। कहाँ पर? जैसे ही थर्ड कैंडल ओपन हुआ 4269, राइट। तो टेक्निकली यहां से यहां तक का एक मूव हमने कैप्चर किया अराउंड 3%, 3% का मूव है। राइट that राइट is- राइट राइट। सो 3.6% ओवरऑल मूवमेंट सिस्टम ने कैप्चर किया, 2.83। बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका इंडिकेटर ही आपको सजेस्ट कर दे रहा है Correct, कि वो खुद ही ट्रेल कर रहा है। दैट्स द ब्यूटी। तो नॉर्मली क्या होता है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप बोलते हो कि स्टॉक अगर 4 रुपए ऊपर हाँ, आ गए तो तो मैं- मेरा 2 रुपए Right. बढ़ना चाहिए एंड ऑल दैट, बट दिस इज अ दिस इज बेटर इंडिकेटर फॉलोइंग वे, राइट? आपको क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करना, इंडिकेटर दिखा रहा है आपको। क्योंकि वीवैप में वॉल्यूम है ऑलरेडी, Right. प्राइस भी है, दोनों चीज ऑलरेडी बेक्ड इन है। परफेक्ट। तो सो दिस इज हाउ इट विल। यस। नाउ लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल देन वी विल मूव ऑन टू द अनदर पार्ट। राइट। इसमें ऑलरेडी मेरा ड्रॉन था तो उसको मैं फिर से हटा देता हूँ फॉर Okay. द क्लैरिटी। यस। तो अब AWL देखेंगे। हाँ। AWL में फर्स्ट कैंडल बना, फर्स्ट कैंडल के सिर्फ ऊपर के साइड जा रहा है, तो अभी मैं सिर्फ ऊपर का लाइन हाँ, क्योंकि नीचे की तरफ आया करने की जरूरत नहीं। Right. तो इसमें तो ये पता है कि इसको नीचे के साइड बेचना है। बराबर। अब हमें देखना है कि 2 कैंडल इसके ऊपर जब भी क्लोज हो जाएगा तो हम लोग इसमें एंट्री बना लेंगे। राइट। अब देखो, फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर बंद हुआ, फिर दूसरा कैंडल उसके नीचे बंद हो गया, ये कैंडल इसके ऊपर बंद, नीचे बंद हुआ, फिर ये कैंडल इसके ऊपर बंद हुआ। अलर्ट बोला कि अलर्ट Correct. है, अब बाय का दो कंटिन्यूअस कैंडल देखनी दो है कंटिन्यूस आपको। कैंडल, यस यस। अभी फिर उसके बाद इसने नीचे दे दिया, इसमें Right. ऊपर गया, नीचे, मतलब कि इसने पोजीशन मुझे दिया ही नहीं। ये टेस्ट करता गया ये पर आपको टेस्ट दिया करता नहीं। रहा। पहली बार इसने Right. कब हमें पोजीशन दिया? जब ये कैंडल बना यस। और ये कैंडल बना। राइट। 2 बार 2 कंसेक्यूटिव कैंडल इसके ऊपर तभी बंद हुआ जब ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल। अब यहां पर भी देखो, अब मुझे क्या है, वॉल्यूम सेटअप के हिसाब से लेट्स लुक एट द वॉल्यूम, barely above दैट। कॉन्फिडेंस अभी भी बहुत हाई नहीं है, लेकिन है कि दिया है सेटअप के हिसाब से दिया है। राइट। तो सेटअप ने एंट्री बना दी। Right. सेटअप डजंट नो कि आप उसके ऊपर 2 गुना वॉल्यूम है, 4 गुना वॉल्यूम, बट एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से जितना ज्यादा बड़ा वॉल्यूम होगा उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। स्ट्रेंथ ज्यादा। यस। बट लेट्स सी कि स्टॉक में क्या हुआ। हाँ। तो हमारा एंट्री कहां पर बनता है? अराउंड 300 256 पे, राइट? नाउ लेट्स लुक एट कि एग्जिट इसने दिया है कि नहीं दिया है। लेट्स लुक एट वीवैप, नहीं दिया। एंट्री एग्जिट हुआ ही नहीं। कहां पे? Right. 315 पे एग्जिट करेंगे। Right. बढ़िया। अनदर 2%, यस। राइट? आप इसको फ्यूचर में अप्लाई कर रहे हो, स्टॉक में अप्लाई कर रहे हो, और आप बेस्ड ऑन द फ्यूचर एंड ऑप्शन के फ्यूचर एंड स्पॉट के चार्ट पे आप उसमें ऑप्शन पे भी आप इसमें ट्रेड कर सकते और हो। चार्ट आपको ऑप्शन ये फ्यूचर और स्पॉट का देखना है। प्लीज डू नॉट Yes. लुक एट इन द ऑप्शन का चार्ट पे, ये Yes. मत लगाइएगा प्लीज, बिकॉज ऑप्शन के चार्ट पे ये वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ आपके फ्यूचर के चार्ट पे करेगा, ऑप्शन फ्यूचर Spot के के चार्ट chart पे, पे स्पॉट के चार्ट पे करेगा, Yes. ऑप्शन के चार्ट पे नहीं करेगा। फ्यूचर और स्पॉट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आप ऑप्शन में कौन सा पोजीशन आपको लेना है, नहीं लेना, कॉल साइड लेना है, पुट साइड लेना है, बहुत ही क्लियर हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इसमें एक और चीज पूछना था, ये हम पोजीशन कितने बजे तक ले सकते हैं? कभी भी आए तब लेना है या नहीं, कैसे? नॉर्मली मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको कुछ मूवमेंट कैप्चर करना है इंट्राडे, राइट? तो थोड़ा समय भी देना पड़ेगा ना। राइट। तो जितना अर्ली मिलेगा तो उतना अच्छा है। परफेक्ट। वीवैप के जितना क्लोज मिलेगा बाइंग उतना अच्छा है, क्योंकि स्टॉप लॉस उतना ही छोटा होगा। हाँ, डीप स्टॉप लॉसेस नहीं, डीप स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव हो गया। जैसे इस Correct. केस में मेरी एंट्री, अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिल रही है तो मेरा स्टॉप लॉस काफी डीप हो गया। यस यस तो यस। जितना वीवैप के क्लोज मिलेगा उतना अच्छा है। जैसे इस केस में आप देख, यहाँ पर मुझे एंट्री मिली 56 पर और 55.6, 1 रुपए पर स्टॉप लॉस था। इतना छोटा स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा आपको? एब्सोल्युटली। तो वो भी देखना है। और 2 बजे के बाद फिर एंट्री नहीं लेते हम लोग, क्योंकि 2 बजे के बाद अगर फ्रेश एंट्री मिल रही है तो फिर आपके बहुत पास कम बचा है, फिर 1 घंटा ही बचा है ना, तो फिर वो मूवमेंट नहीं आएगा, तो अननेसेसरी पोजीशन लेके एसटीटी देने का कोई फायदा नहीं, ब्रोकर का फायदा नहीं। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क ऑन द। तो 2 बजे का हार्ड स्टॉप रख सकते हैं। Hard stop 2 बजे के बाद अगर नहीं है तो छोड़ दो, 2 बजे तक का स्टॉप रखें। तो 3-4 एग्जांपल हमने अपसाइड के देख लिए। नाउ सेम वर्क्स फॉर द डाउन साइड एज वेल। परफेक्ट। तो डाउन साइड में हम लोग 1-2 स्टॉक ले सकते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट में ले सकते हैं, ओके। ठीक है? टाटा इन्वेस्टमेंट में आज 5% नीचे गिरा है, राइट। तो लेट्स लुक, वीवैप को मैं हटा देता हूँ। लेट्स लुक एट इट कि आज का 10 o'clock 9:15 का कैंडल कौन सा बना है। दिस इज 9:15 का कैंडल, द फर्स्ट कैंडल। ये हमारा 9:15 का कैंडल है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9:15 के कैंडल के हाई और उसके लो के ऊपर में हम लोग Plot कर दिया हमने। एंट्री प्लॉट कर दिया। Yes. अब हम लोगों ने बोला कि 2 Yeah. कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, यस। तो थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री बन जाती है। तो एग्जैक्टली 9:31 पे हमारी एंट्री बन गई है। करेक्ट। अब हमें देखना है कि वीवैप, अब मैं प्लॉट कर रहा हूं, यहां पर हमारी एंट्री बनी। अब हमें देखना है कि 2 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर इसके ऊपर वीवैप के ऊपर जब भी बंद हो जाएगा तो मुझे एग्जिट करना है, अदरवाइज मुझे एग्जिट नहीं करना है। यस।
इस केस में हमने कहां पर एंट्री ली, यहां पर राइट 8505 पर, राइट एक बार नीचे आया और 2 कैंडल यहां पर आके क्लोज हो गया। राइट कहां पर क्लोज हुआ, 8516 पे, और हमने 8505 बेसिकली 10 रुपए 10 रुपए 15 Yes. रुपए का हुआ, 8500 का स्टॉक है ये। राइट तो टेक्निकली कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। मतलब 0 Right. पॉइंट सम परसेंट, Correct. राइट, यस उतना छोटा सा स्टॉप लॉस आपको मिला एंड देन यू एग्जिटेड। सो दिस इज द ब्यूटी, जैसे मैं बोला था ना कि स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बनता है। छोटे रहते हैं राइट और द गुड पार्ट इज कि मुझे वीवैप के पास ही मिला था ना, पास ही अगर मुझे मिला। दूर मिलता तो शायद तो थोड़ा stop deep हो loss सकता deep हो था। जाता, Yes. बट इस केस में नहीं हुआ। राइट फिर हम लोगों को देखना है कि दोबारा कब एंट्री मिल रही है, दोबारा एंट्री फिर से 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, तो हम लोग यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं, राइट राइट। अगर हमने यहाँ पर अगर इस कैंडल के हिसाब से एंट्री ली तो हमने 8483 पे लिया और हम लोग डे एंड पे फिर से एग्जिट कर, राइट एक एंट्री अलाउड है, वन One एंट्री entry. इज अलाउड। ओके अगर दो बार अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, शट द शॉप, शोकेस कल बात करेंगे। 2 बार स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो बंद कर दो दोस्तों। एक री एंट्री अलाउड है, जो इस केस में हमको दिख रही है कि एक री एंट्री हमको मिली है और वो कैसे परफॉर्म, लेकिन अगर 2 बार स्टॉप लॉस बाय चांस हो जाता है तो बंद कर देना, क्योंकि क्यों लोगे आप, नेक्स्ट डे वापस आओगे मार्केट में, वापस से आप ट्रेड करोगे। करो, ठीक एक है। दो और एग्जांपल लेते हैं फटाफट। यस ABFRL में सी इट इज ऑलरेडी प्लॉटेड, Yeah. I'll remove that. इसलिए हम लोगों ने ट्रेंडिंग स्टॉक लिया है, यस राइट। ट्रेंडिंग स्टॉक में दिस इज वर्किंग लाइक अ चार्म एक्चुअली, क्योंकि Trending stock एकदम इट इज इट वर्क्स वेरी बट द गुड पार्ट इज कि हाउ डू यू फाइंड, मतलब सुबह में screeners. कैसे पता चलेगा कि ट्रेंडिंग है, तो वो स्क्रीनर के थ्रू बात करें। गाइस स्क्रीनर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कमेंट कीजिए जितना हो सकता है स्क्रीनर, उसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे स्क्रीनर पे, बिकॉज स्क्रीनर एक तो आप अपने स्टॉक में देखो, एक अगर आपको स्क्रीनर मिल जाता है तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल मेक ऑन स्क्रीनर की आइडेंटिफाई कैसे करते हैं स्टॉक्स को, कौन से स्टॉक्स पे आप ये प्लॉट करो सुबह सुबह एट, मतलब आपका 5 मिनट का कैंडल 9:15 पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक पे आपको देखना है। हाँ 9:15 9:20 इवन 9:30 से पहले तक भी Yes. सो द गुड पार्ट इज कि आप मार्केट को 15 मिनट दे रहे हो स्टेबल Right. होने में। आप आज के विनर और लूजर को टेक्निकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 15 मिनट मिल चुका 15 है, मिनट मिल चुका तो है। इसलिए दैट इज व्हाई इट वर्क्स बेटर। यस Right? यस परफेक्ट ठीक है। परफेक्ट तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे 2 कैंडल इसके नीचे बंद नीचे होना बंद चाहिए, होना तभी हम लोग इसमें शॉर्ट Right. साइड का पोजीशन लेंगे। अब एक कैंडल इसके नीचे बंद हुआ, दूसरा उसके ऊपर बंद हो गया, राइट वैलिड हो गया। एक कैंडल यहाँ पर बना, एक कैंडल यहाँ पर बना, तो ये Yes. 2 कैंडल के हिसाब से मैं इस कैंडल पे एंट्री ले सकता हूँ क्या मोहित? वॉल्यूम वॉल्यूम, यस। वॉल्यूम तो इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं था, इस कैंडल Right. में वॉल्यूम बेयरली था, Barely. थोड़ा सा एवरेज Yes. से नीचे था, तो इन दोनों को मैं काउंट नहीं करूंगा। आई विल स्टिल वेट फॉर वन मोर Yes. कैंडल टू कंफर्म। नाउ द कैंडल हैज गिवन मी द कंफर्मेशन। एब्सोल्युटली ये इंपॉर्टेंट है ना, वॉल्यूम इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप 2 कैंडल तो देखो, कई बार ऐसे ही होता है कि हम एक इंडिकेटर देखते हैं पर दूसरा भूल जाते हैं, तो वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम का कंफर्मेशन, क्योंकि भाई अभी तो हम 2 ही इंडिकेटर कर रहे हैं, जब हम एडवांस चीजें लेंगे उसमें तो और बहुत सारे इंडिकेटर्स आप ऐड करोगे, उसमें तो प्रोग्रेसिवली चलते धीरे धीरे चलते हैं, बट Yeah. सब कुछ कैप्चर करो आप। सिंस ये हाँ. जो स्ट्रेटजी है बिगिनर्स भी इसको यूज Yes. कर सकते हैं, प्रो भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल रखा है। राइट अब परफेक्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारी एंट्री कहाँ पर बन रही है मोहित? हमारी एंट्री बन रही है इस कैंडल के इस बाद। सो candle दिस के- इज द प्लेस 89 पे हमारी एंट्री बन Right. रही है। अब देखते हैं एग्जिट बीच में बना कि नहीं। वीवेब के ऊपर एक भी दो भी नहीं आया, क्लोज नहीं होता, कहाँ पर हम लोग डे एंड पे सीधा day end एग्जिट पे करेंगे। लेके जाएंगे। अब इस केस में हमारा यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक आए, क्लोज टू 2.5%। राइट राइट, परफेक्ट आप इसको किसी भी स्टॉक में लगा के देख लो, जैसे आरके फोर्ज में लगाओ इस लाइन के नीचे, यस राइट, तो यहाँ पर टेक्निकली आपको एंट्री मिल रहा है पर एग्जिट 555 पर, 539 पर, राइट राइट। आप किसी भी स्टॉक में आप इसको लगा करके देखो, तो स्टॉक में दोनों साइड हमने चेक कर लिया। अब जाके देखते हैं कि इंडेक्स में काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, यस सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि Index पे इंडेक्स देखते पे हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आ गए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ पर बन रहा है। यस तो सबसे पहले 5 मिनट का एक उसके हाई पर और उसके लो पर, हाई और लो प्लॉट कर रहे हैं लो को अपन। प्लॉट कर ठीक लिया। है अब एक कैंडल इसके ऊपर मूव हुआ, दूसरा कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुआ, तो हम लोग को सीधे वॉल्यूम चेक करना है। इस Yes. कैंडल में एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है, तो हमारी हाँ। एंट्री बन गई। हमारी एंट्री कहाँ पर बनी? 25062 पर। 25062 ठीक है। अब हमें देखना है कि एंट्री ले लिया, अब हमारा एग्जिट कहाँ पर बना। पर है, उसके लिए वीवैप प्लॉट कर क्योंकि देंगे। एक्चुअली यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइड लिया, बट मार्केट Right. नेगेटिव है, तो मुझे Yes. पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ Stop होगा loss हमारा। होगा। तो लेट्स बढ़िया। लुक एट कि स्टॉप लॉस कहाँ पर हुआ। ओके जब ये 2 कैंडल वीवैप के नीचे बंद हो जाती है इज व्हेन माय एग्जिट इज। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट। एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पर मेरा एग्जिट। एग्जिट हो गया। सो ठीक है। 25054 ओके और रादर यहाँ पर 25054 के आसपास में मेरा एग्जिट हुआ। एंट्री कहाँ पर था? 62 पे था। 62 पे था। तो Yes. बेसिकली 8-10 पॉइंट 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका लग गया। यस दैट्स फाइन।
हम लोग एग्जिट करेंगे जब भी स्टॉप लॉस लगेगा तो एग्जिट करेंगे। Yes. तो गुड पार्ट इज कि इस मार्केट ने हमें बताया कि कॉल के साइड जाना है अगर आप ऑप्शन में बाइंग करो, बट इमीडिएटली आप निकल गए कॉल से। अब आप वेट नहीं कर रहे हो, डीके नहीं हुआ, इमीडिएटली आप उससे निकल गए। राइट, अब आप वेट करोगे कि वन मोर एंट्री अगर मुझे मिल जाती है। ओके, अब तो हमें नीचे साइड की एंट्री मिलेगी। कब मिलेगी? जब ये इस लाइन के नीचे क्लोज होगा। राइट, तो टेक्निकली पहला 1-1.5 घंटे में उसने कोई एंट्री दी। राइट, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आने के बाद उसने एंट्री दिया। राइट, पहला एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, वॉल्यूम बेयरली ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट पे, बट सेटअप दे रहा है, बट सेटअप दिया। तो यहाँ पर इसने हमें एक एंट्री दी। ओके, ये एंट्री कहाँ पर है? 24,990 90 पे, ओके, 990 बट एक चीज आप और रिलेट करो कि 25,000 इसने ब्रेक किया है, साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक किया है। यस, तो मेरे पास एक अच्छा खासा कंफर्मेशन है कि साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक किया है, दोबारा री एंट्री मुझे मिली है वीवैप के थ्रू और बेसिकली K5 के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पर दोबारा एक पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी मल्टीपल कंफर्मेशन। यस, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 25,990 के आसपास में हमारा एंट्री है। यस, एंड लेट्स लुक एट वेयर योर एग्जिट इज। दिस इज वेयर योर एग्जिट वुड बी, समवेयर क्लोजर टू दिस, समवेयर 110 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स के आसपास। ओके, क्लोज टू 100 पॉइंट। तो हमने 8 पॉइंट लूज किया था या 10 पॉइंट लूज किया था और हमने 100 पॉइंट गेन किया, कवर कर लिया। यस, यस, दिस इज द ब्यूटी। तो एक एंट्री लेनी, एक री एंट्री, मतलब एक बार स्टॉप लॉस, एक री एंट्री, एंड दिस इज हाउ इट बैलेंस्ड ऑफ थिंग्स फॉर यू। हां, सो दो बार अगर आपका एग्जिट हो गया, दो बार अगर आप एग्जिट कर गए, इसका मतलब शट द शॉप, एब्सोल्युटली, यस, राइट। सो इसको एक और डे पे देख लेते हैं, 24th को भी देख लेते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि अलग अलग सिनेरियो देखना बहुत जरूरी है। राइट। अगर सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में बात करेंगे ना तो स्ट्रेटजी बहुत अमेजिंग लगेगी, बट थोड़ा सा उसको समझते भी हैं कि एब्सोल्युटली अलग अलग मार्केट में अलग कंसोलिडेशन डे में अलग। हाँ, तो अब देखते हैं कि मार्केट ये देख के तो पता चल रहा है कि कंसोलिडेशन था, बट सुबह में पता नहीं था हमें कि कंसोलिडेशन। एब्सोल्युटली। तो लेट्स लुक एट व्हाट दिस स्ट्रेटजी डिड टू यू। राइट, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, इसके नीचे सेकंड कैंडल, तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा क्या? राइट, यहाँ पे वॉल्यूम देखना पड़ेगा, वॉल्यूम नहीं है, एवरेज से कम है। यस, मेरी एंट्री बनी नहीं। यस, नहीं तो मैं यहाँ पर एंट्री लिया नहीं, मैं मूव कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि पहली बार कब यहाँ पर एंट्री बनी। फर्स्ट कैंडल यहाँ पर इसके नीचे क्लोज हुआ, राइट। सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, बट वॉल्यूम जो है सही है। तो यहाँ पर एक्चुअली में मेरी एंट्री बन गई। यस, कहाँ पर मेरी एंट्री होती है? 25,034 पर, 34 पर, ठीक है। बट मार्केट एक्चुअली मूव हो गया ऊपर के साइड, इसने नीचे के साइड में कंफर्मेशन नहीं दिया, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर आके क्लोज हो गया। कितना पॉइंट हुआ? 25094, राइट। और हमने यहाँ पर एंट्री ली थी 25033 पे। तो बेसिकली 70 पॉइंट का यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस दिया एंड देन वी वुड हैव एग्जिटेड फ्रॉम यस, राइट। तो हमारा कितना एग्जिट हो गया? एक एग्जिट हो गया, दो एग्जिट हो गया, शट द शॉप, अभी छोड़ देना। परफेक्ट, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्योंकि ये ट्रेंडिंग डे पे इट वर्क्स बेटर। तो जैसे निफ्टी अभी क्या था, निफ्टी वाज इन अ डाउन ट्रेंड, बट आप इसका चार्ट अगर कैंडल देखोगे तो कल का कैंडल जो था वो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन वाला ही कैंडल था। यस, स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बन रहा था 3 दिन से, राइट। सो ये हमने देख लिया। अब लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी में फ्यूचर पर देखिए। यस, कोई भी एक दिन पकड़, हमने 25 देख लिया, 23 देख लिया, 24 देख लिया, 23 देखते हैं। लेट्स लुक एट 23। यस, वो भी कंसोलिडेशन वाला दिन ही दिख रहा है। हाँ, 23 में देखते हैं। 23 में जिगजैग था थोड़ा, तो एक बार देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ। नाउ दिस इज वेयर we will, and this time we are doing it for futures के चार्ट में देख रहे हैं, क्योंकि दोनों पे दिखाना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। तो देखते हैं 23rd को 9:15 को क्या हुआ। 9:15 का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल है हमारा, राइट। वीवेप अभी हटा देता हूँ, ये हमारा 9:15 का कैंडल है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक डाला ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अब लेट्स लुक एट कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर इसने हमें एंट्री दी क्या? फर्स्ट कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ। ये वाला कैंडल का वॉल्यूम जो है ऊपर है, तो क्लियर है, तो यहाँ पर मुझे एक एंट्री मिल गई, राइट। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, चार्ट देख के पता चल रहा है। अब देखते हैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पर हमने एंट्री लिया है 3386 390 मान के चलते, 390 पर हमने एंट्री लिया। हमारा एग्जिट कहाँ पर हुआ है? 464। तो अराउंड 75 पॉइंट्स का हमारा एग्जिट हुआ, क्योंकि फर्स्ट कैंडल यहाँ क्लोज है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, राइट। तो हमारा क्लोज टू 75 पॉइंट का एग्जिट हो गया। यस, दैट्स फाइन, विल टेक दैट।
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें कहाँ पर री एंट्री मिल रही है। अब देखो यहाँ पर बाकी फिर से एवरेज कम है, करेक्ट, री एंट्रीज दिख रही है बट वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो एनीवे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं। करेक्ट, अब यहाँ पे पहली बार हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो, यस, हम वॉल्यूम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार यहाँ पर अपसाइड इसके ऊपर गया, दूसरा गया, वॉल्यूम सही है, यहाँ पर हम लोग फिर से दोबारा री एंट्री ले रहे हैं, 55 657 के आसपास में, ठीक है। और हम लोग इसको और यहाँ से देखते हैं कि कितना मूवमेंट आया, राइट, यहाँ पर हमने बाई किया है, यहाँ से इसका जो टॉप है वो 163 पॉइंट है, बट यहाँ पर वही है, टॉप पकड़ना तो मुश्किल है। इस लॉजिक के हिसाब से हमें कहाँ एग्जिट करना था, 350 एंड ऑफ द डे पे, क्योंकि इसके वॉल्यूम इसके वीवैप के नीचे क्लोज नहीं होता, हम लोग कहाँ पर एग्जिट ले रहे हैं, हम लोग क्लोज टू यहाँ पर ले रहे हैं, ओके, तो हमने 83 पॉइंट गेन कर लिया। तो फर्स्ट वाले में हमने 60-70 पॉइंट गए थे और हमारा 83 पॉइंट वापस आ गया। कंसोलिडेशन वाला मार्केट में it helped us, right. मतलब दो एंट्री, री एंट्री हेल्प्ड अस, बट री एंट्री टू द एक्सटेंट ऑफ वन री एंट्री देखना है बस। हाँ, री एंट्री, एक री एंट्री हुआ तो हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ऑब्वियसली ब्रोकरेज लगा होगा, बट 5-10 पॉइंट इधर उधर में वी आर सॉर्टेड। तो जो बड़ा लॉस जो होता है ना कि मैंने लिया और मुझे 50,000 लॉस हो गया, लाख रुपए लॉस हो गए, इस केस में नहीं होगा। दैट्स बिकॉज़ केस में नहीं होगा। इट गिव्स यू द सिग्नल कि भाई बाहर निकल जाओ, अदरवाइज बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आपको वीवैप ही आपके साथ चल रहा है, वो ट्रेल कर रहा है और आपको निकाल भी रहा है फटाफट से, जल्दी से निकाल रहा है। ट्रेल वाला का जो मैं बता रहा था ना कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में वो इशू तुम आपका नहीं होगा कि कैलकुलेट करो कि 5%, कभी उसको बहुत ही मैकेनिकल रखते हैं, दो रुपए नीचे जाए या 5 रुपए। अब 2 रुपए 5 रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, तो हम लोग उसके हिसाब से ट्रैक करेंगे। एब्सोल्युटली। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क इन निफ्टी, बैंक निफ्टी। हमने दोनों स्टॉक में ट्रैक किया कि कब वो किस तरह से वो अपसाइड मूवमेंट में, डाउन साइड मूवमेंट में कैसे ट्रैक होता है। सो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको आप अलग अलग चीजों के साथ आप उसको मिक्स कर सकते हो। जैसे जब हम लोग इसको यूज करते हैं, वी ऑल्सो लुक एट कि कोई साइकोलॉजिकल लेवल वहां पे नहीं, जैसे निफ्टी में अभी हमने देखा 25,000 के नीचे हुआ तो यस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा। उसके बाद हम लोग का कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ना हो, पिवट का रेजिस्टेंस ना हो, 20 EMA ना हो, तो ये सारा चीज हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं। ये सारी चीजें बेसिक है, वो आगे आती रहेगी, वो हम लोग बताते भी रहेंगे। बट अगर प्लेन वनीला से भी इसको यूज करना है तो ऐसे यूज करो, अदरवाइज you can start mixing it with any other indicators as well. Plain vanilla is very simple. अब आप जितना एडवांस होते जाओगे उतना आप उसमें जो भी कंफर्ट जोन है टुवर्ड्स द इंडिकेटर, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग टू दैट, बट बाय एंड लार्ज दिस इज हाउ इट। बेसिक ये कि रूल्स फॉलो करना है दोस्तों, और एक रूल सबसे मेन फॉलो करना है कि सारे रूल्स फॉलो कर लो। ज्यादा रूल्स नहीं है बट इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और किसी भी स्टॉक के साथ इमोशनल अटैचमेंट, ऐसा नहीं मेरे को इन्फोसिस बहुत अच्छा लगता है तो एग्जिट दे भी दिया तो मैं नहीं एग्जिट करूंगा, नहीं, वो नहीं करना है। हाँ। कोई भी स्टॉक हो, अगर आपको रूल और सेटअप के हिसाब से बता दिया एग्जिट करो, चाहे वो प्रॉफिट में दे रहा है, लॉस में दे रहा है, ट्रेल करने के बाद भी थोड़ा प्रॉफिट है थोड़ा लॉस है, आप बस निकल जाओ उससे, क्योंकि ये इंट्राडे एक दिन के लिए करना है यार। आप इमोशनल अटैचमेंट रखोगे तो आप कैसे कर पाओगे? करेक्ट। तो दैट इज आज ये स्टॉक शायद 4% नीचे है, बट कल स्टॉक फिर 2% हो सकता है, ऊपर भी हो जाए। तो आज के हिसाब से इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो आज का सेंटिमेंट हमने देखा, कल का सेंटिमेंट हमें नहीं पता, कुछ न्यूज आ गया, राइट, तो ये स्टॉक ऊपर भी मूव हो सकते हैं। तो बेटर है कि प्रॉफिट लॉक करते हैं और ये ध्यान में रखते हैं कि प्रॉफिट बुक करने से कभी लॉस नहीं होता। एग्जैक्टली, प्रॉफिट से लॉस नहीं होता है, थोड़ा जितना लेके जाओगे उतना लेके जाओगे आप, राइट। Perfect. I think that's something, but rules को follow करना है, discipline follow करना है. That's it, right? Yeah. Well, that was really mind blowing. I have seen it in action, but watching you break it step by step gave much more clarity. Before we wrap up today's video, just some more basic questions that majority of the traders have. This is a very important question and the most asked question. How many months backtesting have you done with this? How do we? Backtesting wise, if you will ask me personally, I usually do not believe much in the backtesting data, because मैंने आज तक किसी को भी पेपर ट्रेड करके लॉस करते हुए नहीं देखा है। Everybody makes money. It's very easy to get a 10 lakh और 1 crore capital and then you just blow it and उसके फिर आप एक नया email ID लो, नया अकाउंट बनाओ, फिर से 1 करोड़ वापस आ जाते हैं। रियल मार्केट में वो नहीं होता। Right, absolutely. और बैक टेस्टिंग में there is some bit of a curve fitting. So I give that analogy is backtesting is like Tinder profile, right? So बाहर से प्रोफाइल बहुत अच्छा दिखता है, but when you actually get into that, then only you will know actually the real picture of it, right? So backtesting में it may look very lucrative, but what I urge everyone is do not get into after learning this, do not get into the trade immediately. पहले आप watch करो, धीरे धीरे
पहले 1 वीक 2 वीक 5 वीक डिपेंडिंग Right. अपॉन योर लर्निंग साइकिल, लर्न दैट, सी कि एक्चुअली में ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Right. बिकॉज किसी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी जब चलती है ना, तो दैट ओनली रन्स एज टू हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव इन योर ओन ट्रेड, Absolutely. राइट, एंड हाउ गुड दैट यू फॉलो. तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, देन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू 1 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 100,000, देन ग्रेजुअली आप इंक्रीज करो. सो बैक टेस्टिंग वाइज वैसा बैक टेस्टिंग डेटा हमारे पास नहीं है, बट 1.5 year में there has been like more than 10,000 20,000 people would have come Right. back, and I know for sure there may be a lot more who did not come back to us, but this is what is the feedback we have heard. Last conclave mein it was like a Got it. it was a great hit. Yes. So I believe it works, but for you guys to believe, first of all test करो आप. ऐसा कोई blind 100% guaranteed strategy नहीं होती है, right? So अगर आपको लगता है कि this guarantee. starts working, then only get into that. Otherwise, there are 1,000 more strategies that you can work upon. No, absolutely. No, that's very true कि आप टेस्ट करो, देखो, आप अपने स्टॉक्स पे यूज करो, एटलीस्ट 1 month 2 months देखो, जैसे कंफर्ट आता है, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट Yeah. डिप्लॉइंग कैपिटल. डोंट डू पेपर ट्रेड. जैसे कि आप बोलते हो पेपर ट्रेड में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप नहीं पेपर एक ट्रेड बार आप करो, पेपर ट्रेड से आप सीखो. हाँ, बस. बट द पॉइंट इज पेपर ट्रेड में सब कुछ सही होता है, लर्निंग आप करो बिल्कुल. उसमें मुझे लगता है कि पेपर ट्रेड सबको करना चाहिए, बट द लास्ट बिट ऑफ द पेपर ट्रेड में जो साइकोलॉजी होती है, Yeah. जो मनी की साइकोलॉजी होती है कि मैं 100 रुपए एक्चुअली लूज कर रहा हूँ, और वो जो Right. पेन होता है कि मैंने 100 रुपीज लूज कर दिया 500, वो पेपर ट्रेड में नहीं होता. करेक्ट. So you first do the paper trade, you learn about it, and after that start putting a Small very capital. small Yeah, amount yeah, in the yeah, market, yeah. and then Yes. फिर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी या इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को सीखो, and then you continue to increase your position sizing. So this is how the cycle should be. एब्सोल्युटली. ग्रेट. वेरी मच करेक्ट. छोटा छोटा पैसा डिप्लॉय करो ताकि आपको पेन पता चलेगा, गेन्स पता चलेगा, Correct. क्या हो रहा है. Correct. छोटे कैपिटल से फिर धीरे से बढ़ाओ. Yes. ग्रेट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक डू यू सजेस्ट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग K5 स्ट्रेटजी? So रिस्क मैनेजमेंट वाइज अगेन रिस्क का जैसा कि मैं बताता हूँ कि डेफिनेशन सबके लिए अलग होता है. Right, आपके लिए शायद absolutely. 10% होगा. मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था रिसेंटली कि किसी के लिए 5% बहुत है, किसी के लिए 10% है. तो रिस्क वाइज आई विल नॉट बी एबल टू क्वांटिफाई दैट, बट Right. व्हाट आई से इज when you will start applying this particular strategy, then whatever strategy is, when it asks you to exit, राइट. अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, then please take the stop loss and come out. You may get one more opportunity to enter. तो हम लोग बोलते हैं कि one re-entry is allowed with this Right. particular strategy. But beyond that, अगर आपका दो बार अगर आपके स्टॉप लॉस हो जाता है, shut the shop for the day, next day come back or maybe get on to the the next part. Right. But do not continue to keep chasing, because जब sideways market होता है तो multiple time ये signal generate करेगा. यस. Right? So रिस्क आप उस हिसाब से ले, बट इफ यू आर फॉलोइंग द स्ट्रेटजी देन फॉलो इट प्रॉपरली. अदरवाइज देर इज वन अनदर वे दैट आई टॉक अबाउट नॉन ग्रीडी वे. जब भी आपको 0.5-1% रिटर्न मिल जाता है, बुक कर लो. तो आप पार्शियल प्रॉफिट तो डेफिनेटली बुक partial कर at लो. least, yes. सो दैट वन पार्टी इज बुक्ड, हाफ पार्टी इज देयर. राइट. यू विल नॉट हैव द हार्ट बर्न कि मैंने एग्जिट कर लिया और फिर वो स्टॉक 10% ऊपर भाग गया, बिकॉज यू स्टिल हैव दैट व्हाटएवर 50-60 Right. व्हाटएवर परसेंटेज यू आर कंटिन्यूइंग. और अगर वो एग्जिट हो जाता है तो हाफ पार्ट विल कम कॉस्ट टू कॉस्ट एंड इट विल टेक यू द एग्जिट, बट द फर्स्ट पार्ट में यू ऑलरेडी बुक द प्रॉफिट. तो लॉस होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कम. एब्सोल्युटली. तो बेसिकली डिसिप्लिन फॉलो करना है. Oh, yeah, डिसिप्लिन definitely. फॉलो करो तो सब आपका, आपने जो डिफाइन किया उसको फॉलो करते रहो. जैसे कि अगर आपने इतना ट्रेड है तो इतना ट्रेड अगर आपने बुक कर लिया या फिर लॉस भी हो गया तो उसको स्टॉप कर दो. 100%. आपका वो डिसिप्लिन फॉलो करो. 100%. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब आखिरी के कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन. हाँ. उसमें ये है कि क्या ये मैं अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे फुल टाइम सिस्टम पे बैठना पड़ेगा? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, हाँ. बट मुझे लगता है कि वंस यू हैव एंटर्ड इनटू द पोजीशन, देन यू विल हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ अ कांस्टेंट वॉच. बिकॉज Right. क्या है ना, इसमें जो स्टॉप लॉस is dynamic. राइट. Basically, you keep trailing your stop loss based Right. on how the VWAP moves, like how I talked about. तो VWAP will continue to move. तो आप एक static number पे stop loss वहां पे नहीं लगा पाओगे. तो you will always have to keep a watch. मतलब there are ways wherein you can keep alert and maybe be away from the system and just put a stop Right. loss. But जब तक आप पोजीशन पे हो, मुझे लगता है कि you will have to be very active in the market. Right. If not full time in front of system, but you will have to be very active, understanding कि क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर पोजीशन के साथ. एब्सोल्युटली. तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा. थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. अगर आप देखो, अगर आप किसी भी केस में इंट्राडे कर रहे हो, राइट. so एब्सोल्युटली. intraday is not for somebody who is doing it as like a hobby, right? Intraday is It's a requires a business. full focus, right? या Because एक दिन में अगर कोई स्टॉक आपको 5% 10% दे सकता है या 5-10% का लॉस हो सकता है, दोनों केसेस में, राइट. then you have to be very watchful.
right? Because एक दिन में stock का movement predict करना is like impossible for anyone, Absolutely. right? So you have to be active in the market for this. Perfect, perfect. Any final advice that you want to give to the viewers out there कि इस strategy को execute करने के लिए क्या 3-4 की चीजें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए? Any final advice from your end? One is if you are, so there are two ways to execute this. One is what the strategy talks about. Another one is keep booking the partial profit. तो मेरे हिसाब से partial profit बुक करने से आज तक किसी का लॉस नहीं हुआ है, Absolutely. राइट? तो पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करो, प्रॉफिट बुक करने से कभी भी लॉस नहीं होता. Right. सो दैट इज वन वे. अनदर वन इज इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है. इट वर्क्स बोथ साइड ऑफ द मार्केट. व्हेन मार्केट गोज अप, व्हेन द Right. मार्केट गोज डाउन, इट वर्क्स इन स्टॉक, इट वर्क्स इन फ्यूचर. डू नॉट अप्लाई इट इन ऑप्शन का चार्ट. ऑप्शन के Right. चार्ट पे इट वुड नॉट वर्क, राइट? एंड टेस्ट इट आउट बाय योरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट कि आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं. Right. हो सकता है कभी आपको लगे कि स्ट्रेटजी के थ्रू स्टॉप लॉस काफी डीप है, देन मे बी दिस स्ट्रेटजी माइट नॉट बी फॉर यू. और आपको लगता है कि नहीं, ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देता है और वो मेरा स्टॉप लॉस हंट करके चला जाता है, एंड देन इट गोज अप. देन यू गिव इट टाइम. देन यू सी Right. हाउ मेनी टाइम्स इट इज गिविंग यू द पॉजिटिव ट्रेड वर्सेस नेगेटिव ट्रेड, एंड बेस्ड ऑन दैट टेक अ कॉल. सो एंड दिस इज फॉर एनी अदर स्ट्रेटजी, Yeah, not for yeah, this strategy. absolutely. It requires a lot of confidence, it requires a lot of practice for that particular strategy. And once you have mastered it, just follow it, right? और उसमें जब भी मार्केट के हिसाब से अगर कुछ ट्विकिंग चाहिए तो वी कंटिन्यू टू डू दैट. मे बी इन अनदर सेशन वी विल टॉक अबाउट द एडवांस वर्जन ऑफ K5, बट राइट नाउ जस्ट स्टार्ट विद दिस एंड सी फॉर योरसेल्फ कि अगर वर्क कर रहा है तो फिर छोटे छोटे पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, और अगर वर्क नहीं कर रहा है तो इट्स ओके. सो देन आपका लर्निंग साइकिल थोड़ा लंबा होगा. राइट, perfect. तो गाइस, मेन थिंग इज आप टेस्ट करो अपने स्टॉक्स पे, अपने पैटर्न पे आप टेस्ट करो उसको, आपके लिए कैसे काम कर रहा है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा कैपिटल डाल के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट टेस्टेड बिफोर यू एग्जीक्यूट. दैट्स ग्रेट कुणाल, थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग इट डाउन, आई मीन मेकिंग इट मोर सिंपलर फॉर एवरीवन आउट देयर. काफी मजा आया दोस्तों. आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करो, शायद जितना शेयर करोगे उतने लोगों तक ये स्ट्रैटेजी पहुंचेगी. और क्योंकि वी हैव कंफर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब हमारे जो यूजर्स है उन्होंने कंफर्मेशन दिया, उसके बाद हम लोग ये बेसिकली वीडियो बना रहे हैं ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. सो and this is not a foolproof strategy. Yeah. तो blindly follow नहीं करना है. As a SEBI Exactly. registered, we always say Yes. that whenever you are investing, you should be doing the research by yourself. You should always be taking help of some financial advisor or whatever. yes, ये strategy is just to help you identify good stock, and then how you would take position is something that so there are multiple ways Right. to understand that, and then only take the position. absolutely. Yeah. Cool guys, that's great. Thank you so much for watching us through. यूज करो, एग्जीक्यूट करो, आराम से यूज करो. कुछ अगर कुछ भी आपको है ना दिक्कत आती है या कुछ प्रॉब्लम आता है या कुछ भी क्वेश्चन आप फेस करते हो तो नीचे कमेंट में जरूर डाल दीजिए, एंड वी विल गेट बैक टू यू. हमारी टीम आपको गेट बैक करेगी, विच विल सिंप्लीफाई द योर क्वेश्चंस, और उसके जवाब आपको मिल जाएंगे. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आई थिंक दिस इज जस्ट वन स्ट्रैटेजी दैट वी हैव अनवील्ड. वी हैव अ लॉट मोर इन द स्टोर, और काफी सारी इस तरह की स्ट्रैटेजीज हम पुश करते रहेंगे और वीडियोस बनाते रहेंगे. तो डू subscribe to us. Trade smarter, trade safe. See you in the next one. Until then, see you guys. Bye bye. Thank you so much. Thanks everyone. Thank you so much, guys.